So what had happened way back in 2008, there was a small company called Zendu Pharma, जिसका प्रोडक्ट आता है ज़ेंडू बाम, रेड बाम एंड द different pain relief balms जो आते हैं. So Imami was a very small company and they had bought this 100-year-old Zendu Pharma business, and they expanded the business, and Imami's market cap was 2-3,000 crores, and it jumped to 25,000 crores. From a 2,000 crores to 25,000 crores is a jump of 10-12x. So then what happened? All thing was going good, and they were making a lot of money, and they had a lot of cash, and they had a lot of investments, and suddenly in 2016 again they went and bought a very big plant. This company was called Kesh King, right? The hair oil. And the promoter in this AGM in 16, when I had attended the AGM in the month of May or June, they said we had paid around 1710 crores for this, including of taxes and including of every damn thing. So our business went up from 450 crores of assets to 1900 crores of assets. But in 2016, what had happened? Let's go and look at the market cap first. Way back in 2016. So way back in 2016, our market cap for this company was 21,000 crore. It went to 24,000 crores, and today it is 19,000 crores. So after this acquisition, the company never had a significant run up, and in COVID, this market cap fell to 7,000 crores. So what went wrong? Can you imagine what went wrong over here? Sir, I have some small idea about this. इन्होंने काफी ओवर वैल्यूएशन में केश किंग को बाय कर लिया था. उनके जो सेल्स के फिगर्स वगैरह भी थे केश किंग के, वो सब फोर्ज फिगर्स थे. वो नहीं, ऐसा नहीं था ये. ऐसा नहीं था. ओवर वैल्यूएशन आपने सही बोला, पर वो फोर्स फिगर्स नहीं थे. इनको नहीं पता था कि when they had bought this Kesh King, the channel inventory was fully stuffed. सॉरी फुल. यस. तो जो चैनल में जितना भी माल पड़ा होता था उनको नहीं पता था. They had to clear their channel inventory, and that took a lot of time. And after that, whenever they started running Kesh King, Baba Ramdev launched Kesh Kanti from Patanjali. So they got competition. Yes. And पहले it was a very lucrative thing. So what they did, whenever you buy a company more than the book value, they bought Kesh King for 5.5x sales. Sales was around 300 crores, 320 ऐसे कुछ sales था. So they paid around 5.5 times sales, which was around 16,870 crores, 80 crores plus taxes. तो 1700 crore का इनका इन्वेस्टमेंट था. तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए they had to liquidate all their investments and पता नहीं क्या. See, investments from 500 crores went down to 100 crores. जो भी इनके पास कैश रहा होगा, कैश went down, and everything. They had to take a lot of debt also. From 36 crore debt, the debt went up to 600 crores. So उन्होंने पूरी जान लगा दी ये केश किंग खरीदने के लिए. तो एनी पर्टिकुलर रीजन क्या क्यों उन्होंने किया था? मैंने इतने कोई मोटिव दिया? आप बोलते हो कि वो आके उसने अपना केश कांति भी खड़ा कर दिया. मोट था, ऐसी बात नहीं. मोट नहीं था. मोट था. केश हेयर ऑयल सेगमेंट, हेयर ऑयल मार्केट वाज अ ग्रोइंग मार्केट एंड अ वेरी हाई प्रॉफिट. ओके. सो उसका केश कांति आके खड़ा हो गया, जो इनको नहीं पता था. सो दे गॉट कंपटीशन. So the point is, anytime any promoter, any business, any management goes and buys another company, and they are paying more than book value. Now you know what is book value. The sum of these two numbers is book value. So definitely a company having a 300 crore sales, when you're paying 16, 17, 100 crores for the company, definitely the book value is supposed to be less. So they paid X multiple of book value. So in accounting, what will happen? You will have a accounting component called goodwill, which is an intangible asset. I don't think so. यहाँ पर आएगा. ये आ गया. ठीक. 1710 crore. I still remember the numbers. 1710 crores went up into the intangible assets. Now, what started happening in this intangible assets? यहाँ पर वो नई चीज दिखा रहा. Suppose what I do is I go to the BSC website and I select results over here, and I select, it was March 2016. So let's take April 1st
2017. We just want to see the results. And let's take March 31st, 2017. 2017. So please give me 1 second, please. Right. So we got this results. I hope my screen is visible again. So we got these results. So ये सारे आ गए. I just want to see the results. 2018 होगा. 18 होगा. And this is the results we got. Now have a look at these results. These are your standalone numbers. These are your consolidated numbers. So please have a look at these results. क्या समझ में आ रहा है? This is way back in 2016. Sir, amortization and impairment. It was 7,500. Now it's 26,000. Yes, because that intangible assets increased to a lot of size. So you see over here they were doing depreciation and amortization. So what they were amortizing, they had bought this Kesh Kanti and 75 crores, 70 crores, 62 crores. They were amortizing every quarter. From 212 crores, 260 crores, so on and so forth in the next subsequent years. You see this, the value of the fixed asset is going down. So whenever you see an component of intangible asset, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा. Now see, this is the consolidated, this is the standalone, this is the balance sheet. So whenever you see an intangible asset of this quantum, and please divide this number by the total assets. Please divide that number by the total assets and see what percentage you get. It's 8.57. Anytime you see your balance sheet total assets and your intangible assets more than 50% of your balance sheet total assets, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि your balance sheet is bloated. And what the management will do is, management will ने अभी ले तो लिया है. No, since last so many years I showed you the market cap, the market cap did not increase. So what they have done is they have taken a write-off from 2016 till 2017, which is 1499 crores. They had paid extra. They had paid extra buying the Kesh Kanti brand, Kesh King brand. अभी तो वो इंटेंजिबल एसेट गुडविल आया, राइट? गुडविल मानो, इंटेंजिबल एसेट मानो, एक ही बात है. समझ में आया कि नहीं आया? Out of 1710 crores, out of the taxes, out of the book value, this payment was done extra. Valuation, consolidated number. Now, from 1499 crores, they have reduced the goodwill to 1239 crores. कितना हिट हो गया? कितना राइट ऑफ हो गया? राइट ऑफ 270 करोड़, 1500 करोड़ से 1200 सर 270 करोड़, 260 करोड़. 260. इसका मतलब ये 26,000. 26,000 crores, not तो lakhs. lakhs में है ना, तो So 26, yeah. 260 crores. Yes, 260 crores. So this means that the management is telling you that I took a loan, I sold my investments, I utilized my cash balances, and I am telling you that I bloody damn made a mistake. So I am writing away 260 crores in just 1 year. That is amortization of goodwill. So
one thing, anytime you see my goodwill more than 50% of my assets is bad, your balance sheet is bloated, and soon management will tell you कि we did a bloody damn mistake and they were started writing off. ये तो हो गया 2016-17. Now if I go and look in the other results, so let's make it 18. Again 1st of April. Let's make this 19. Again 31st of March. ये हमारे results आ गए. So this would be the result, I guess. नंबर ही नहीं, ये Q1 का नंबर होगा. This तो इसमें 2018 का हमारे को पता चल जाएगा. This is the P&L, वो है ही नहीं, इसके अंदर बैलेंस शीट है ही नहीं. तो ये Q2 का है. Let's look at this one. Okay. उसके आगे की बैलेंस शीट आपकी ये होगी. नेट इंटेंजिबल एसेट which started from 1500 crore is now down to 880 crores in a matter of 1.5 years. So 1500 में से 880 निकला तो कितना बचा? 620. So that means the management is telling you I made a blunder of 600 crores. Now I'm writing it off. It is your money, but I made a blunder. I made a miscalculation. That's why I'm writing it off. It is a compulsion to test the goodwill and to test the availability of that goodwill. क्या वो viable है कि नहीं है, नहीं तो आप take a write off. And so then they are doing it again and again because इतना बड़ा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी वायबिलिटी कम होती जा रही है. Now you see, from 20,000 crores, it has been so 8 years. The market cap has not crossed that 20-22,000 crore का market cap. It has not crossed that. 8 years, zero returns. चलो आगे देख लेते हैं. This was Imami. So let's make it 2020 पे आ जाते हैं. अभी कोविड आ गया तो वायबिलिटी तो और बिजनेस की कम होगी. 2021 कर लेते हैं. लेट्स गो एंड लुक एट द रिजल्ट्स. दीज आर, ये जून के रिजल्ट्स आ गए, ये मार्च का रिजल्ट आ गया. इसमें ये डेटा ही पूरा नहीं है, पुराना डेटा हो गया ना. This is the balance sheet. Now see, in a matter of 17, 18, 19, in a matter of 3.5 years, that 1,500 crores of goodwill has been amortized to 600 crores. 900 crore rupees का हिट हो गया अभी तक. That means मैनेजमेंट कह रहा है कि मेरे से जजमेंट करने में 900 करोड़ की गलती हो गई. अब आपको क्या लगता है, ये बिजनेस अच्छा नहीं है? ये बिजनेस तो एफएमसीजी बिजनेस है, इसका तो वो आरओसी एंड आरओई और वो सब चीजें बहुत अच्छी थी और हमेशा से अच्छी थी और सालों साल अच्छी रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. एंड दे वर मेकिंग कैश फ्लो आल्सो एंड इट वाज अ मैच्योर बिजनेस. सब कुछ तो ये कर ही रहे थे. दे वर सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स. तो चलो सेल परसेंट से कुछ भी चल रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा था इसके अंदर, कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी. पर प्रॉब्लम ये थी कि बिना सोचे समझे इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट कर दिया या इतना बड़ा एक एक्विजिशन कर दिया जो इनके पूरे बिजनेस को ही हिला दिया. अब 2017, 18, 19, 20 4 साल हो गए. नाउ लेट्स purposely go to the next year because ये ईयर तो कोविड का था. Let's purposely go to 2021. Let's make it April. Now let's make it 2022 and let's make it March over there. And let's go and look at the results 31st March. तो यहाँ हमारे को P&L भी आ जाएगा, यहाँ हमारे को बैलेंस शीट भी आ जाएगी. Now have a look. जब लॉकडाउन था बिजनेस तो चला ही नहीं. अकाउंटिंग रूल्स है, गुडविल को एमोटाइज तो करना ही पड़ेगा. अभी 619 करोड़ मैंने एक्सेस खड़ा कर रखा है. ये भी मेरी गलती है जो कभी न कभी एमोटाइज होगा. मैं टेकन हिट ऑफ 50%, 353 करोड़. तो आपको क्या लगता है कोविड में यहाँ पर मेरा 350 करोड़ का एमोटाइजेशन आया हुआ है या पर यहाँ पर आया हुआ है?
अगर मैं एमोटाइजेशन मेरा नहीं हो रहा होता, सीधे अमाउंट 34 करोड़ से सीधा 250 करोड़ मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, अगर मेरे ये इतने बल्क अमाउंट्स ऑफ ये सब नहीं होते, तो these earnings would have been way ahead, and I would be getting way ahead of dividend, because this is in a capital return phase. This is a mature company in a capital return phase. They were writing it off कि हमसे गलती हो गई, ठीक है। अब ये इतना मेच्योर बिजनेस है और इतना ये डिविडेंड आपको दे रहा है और अर्निंग भी दिखा रहा है और कैश फ्लो भी बड़े अच्छे दिखा रहा है, कैश फ्लो में भी कुछ कमी नहीं है इसके अंदर, पढ़ते हुए कैश फ्लो, स्टिल द मार्केट इज नॉट गिविंग इट एनी प्रीमियम। ये 21,000 का 24,000 हुआ, उसके बाद कभी गया ही नहीं। मार्केट इज स्टिल नॉट वैल्यूइंग द बिजनेस in spite of everything being good. Next, 2021 है, now see what will happen. 2022, let's go and look at next year's numbers. 2023, let's go and look at the next year numbers. Now see. Now see what is इससे happening. बढ़ गया। बढ़ गया है कि इसका मतलब ये है कि this 35,000 plus amortization is equal to 56,000. So that means what is 560 minus 350? मोटा मोटा, हाँ मोटा मोटा 210 प्लस कुछ मैंने डेप्रिशिएट भी किया होगा, 200-300 करोड़ मैंने डेप्रिशिएट भी किया होगा. That means I am again put up 800 crores more than the book value, and I went and bought some other business at an extreme steep price. जो गलती मैंने पहले करी, हो सकता है कि वो गलती मैंने दोबारा फिर करी हो सकता है, I don't know. I went and bought some other asset with an extremely steep price. That is why I'm getting these deferred tax assets, and थोड़ा बहुत मेरे को अब 24 करोड़ का गुडविल भी हो गया, which is 2023 का annual report. Do you see any? हाँ सर. सर वो बैलेंस शीट पे जाइए ना, जब भी एक्वायर करेगा तभी ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट या गुडविल अगर ज्यादा पे किया है तो आएगा. तो जब वो राइट ऑफ करेगा तभी ही डजंट हैव टू नेसेसरली सेल ऑफ दैट सब्सिडरी और राइट. नहीं, he will not sell off that. वो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है ना, वो गुडविल में अकाउंट में लगे खड़ा कर देगा. Then he will slowly start writing off this goodwill, and he will slowly start writing off this intangible assets. तो लेकिन वो डिसाइड किस बेसिस पे करेगा कि मुझे ये राइट ऑफ करना है गुडविल से, मतलब डेप्रिसिएशन. यही तो मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है. अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं, इंड आईएस रूल्स कहते हैं कि आपकी जो वायबिलिटी आपको दिख रही थी, अगर वो वायबिलिटी उस पीरियड के हिसाब से कम होती जा रही है, then you have to write down the value of the assets, and the write down of the value of the assets is certainly a hit. Now you just think over here, what was my asset in 2021? 714 crores. What is my asset in 2022? 685 crores. So this asset minus depreciation plus this extra bought is this. So that means I have bought a very small asset business, very small asset business, and I paid what, 210 crores extra for that, plus 24 crores on goodwill, and plus what, 7-8 crores for your right to use of assets. यानी कि मैंने 250 करोड़ एक्स्ट्रा दिया मोटा मोटा, and that asset has a very small thing. If you go and look at Imami, अभी आपको एक चीज पता चलेगी यहाँ पर कि they have been acquiring something, acquisition, and this is what they have been saying. The name of the company is Brill Rare Science Private Limited. Now from 95% stake they started, मतलब छोटा लिया, now they acquired 100% of that private limited. Now this Brill Care Science Private Limited certainly has less amount of assets. क्या सेल होगा क्या नहीं होगा वो तो जब एनुअल रिपोर्ट आएगा वो बताएगा, ये मेरी सब्सिडरी है, सब्सिडरी का आपको डेटा देगा तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा.
नाउ द थिंग इज, ये ब्रिल केयर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये है कौन भाई? ये इसके पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है? तो अगर मैं उसको जुबा में जाके चेक करूं, इमामी, राधे श्याम गोयनका और आर एस अग्रवाल, बड़ी कंपनी है, बड़े उसके वीडियोस आते थे और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट थी वो तो है, मतलब थी नहीं, है, वो तो सुपर है। जैसे ही ये सेकंड जनरेशन मैनेजमेंट आई तो उन्होंने ये बेवकूफियां करनी चालू कर दी। अभी और भी दिखाऊंगा इसमें और क्या कहानी चल रही है जब तक वो पेज खुलता है। So now you see, anytime your goodwill or your intangibles are more than 50% of your total assets, you have a bloated balance sheet, and you'll have to recognize very soon that I have done a mistake and I will write this off. और जैसे जैसे आप वो राइट ऑफ करते चले जाओगे, मार्केट विल स्टार्ट पनिशिंग यू। जो भी आपका आरओसी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन, कुछ भी हो, मार्केट विल स्टार्ट पनिशिंग यू। नाउ they have bought another company, जो ये जिगर पटेल और पता नहीं कौन लोग, आई डोंट नो, एंड गुजरात की कंपनी है, अहमदाबाद की। तो ये लोग ये करते जा रहे हैं। दिस इज, अब मुझे तो नहीं पता था ना इन्होंने एक्विजिशन किया है। वी तो कैन सी फ्रॉम द नंबर्स दे हैव डन दिस एक्विजिशन एंड स्लोली दे हैव डन दिस एक्विजिशन। नाउ दिस वाज 2022। लेट्स हैव अ लुक एट 2023 का, तो हमको यही पता चल जाएगा। 2023 का तो ये मार्च 2023 में you can open up this PDF. This is the result. Again they said we made a mistake. Again we are writing off. But now what they are doing is they are actually not writing off. They are adjusting this intangible and putting it in the goodwill account. Refer note number 6 and 8. I have a view at note number 6 and 8. This is another company, Helios Lifestyle Private Limited, जिसके इक्विटी शेयर्स इन्होंने 49% से 50% कर लिए। Please read note number 6 and 8. जो ब्रिल एयर हमने देखा था, they had invested also and they had invested in compulsory converted preference shares also, जो उन्होंने कन्वर्ट कर लिए 1300 lakhs, CCPS 6010 lakhs, and the group has recognized 6010 lakhs for this Helios capital and recognized intangible of 4656 lakhs as per Ind AS, as per group has इतना आया हो गया। तो हीलियोस के लिए मेरी इतनी हो गई और इसके लिए मेरी अलग से मेरा गुडविल अकाउंट खड़ा हो जाएगा, राइट? एंड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन डन बाय द एक्सटर्नल वैल्यूअर एंड डिस्क्लोज इन एमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इम्पेयरमेंट माने लॉस हो गया जी, गलती हो गई, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, इसलिए मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ। एंड दे आल्सो एक्वायर दिस कैनियस लूपस, जो अभी इसका सब्सिडरी नहीं है, ये इसका जेवी हो जाएगा बिकॉज 30% एक्वायर किया। So do you see they are acquiring again and again and again and again and again to survive? अगर ये acquire नहीं करेंगे, business is not growing. Business is a mature company. Here are sales. Sir, ये like acquisition में करके आगे जा रहे हैं, वैसे organically ये आगे नहीं जा पा रहे हैं। Yes ma'am. सर इमामी ने जो लोन लिया था हिलियोस शोरूम से, उसको उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। लिया था कि दिया था? सर मैंने पढ़ा नहीं प्रॉपर्ली। इमामी had converted its loan receivable. इन्होंने लोन लिया था, दिया था, इन्होंने दिया था। See, they had to receive the loan, so that is why they converted, and they already hold 49%, and they now it's no, who is Helios? कहीं हीलियोस का डायरेक्टर या डायरेक्टर का भाई कहीं इमामी का डायरेक्टर तो नहीं, या उसका कोई कनेक्शन तो नहीं? वो सब स्टडी आपको करनी आती है, वो सब डिटेल्स आपको देखने आते हैं।
Yes. Now the very good part is, see what is the pledge of this promoter? 13%. ज्यादा नहीं है, कुछ और देखते हैं इस प्रमोटर के बारे में. द गुड पार्ट इज इमामी, ये पहले इतना इन्होंने अपने आप को प्लेज कर दिया. इन्होंने एक सीमेंट प्लांट खड़ा किया, इमामी डबल बुल सीमेंट प्लांट. इतना इन्होंने अपने आप को प्लेज कर दिया पुराने जमाने में कि इनको अपना स्टेक बेचना पड़ गया बिकॉज ऑफ द प्लेज. तो दिस इज अ प्रमोटर. You see small amounts of pledge over here, small amounts, ज़्यादा नहीं, percentage or small amounts. So these are the numbers of shares जो इनके कहीं ना कहीं ये pledge में जा रहे हैं. ये छोटे छोटे शेयर्स हैं. कितने सारे promoters हैं? बेसिकली इनका ये सूरज फिनवेस्ट, दिवाकर फिनवेस्ट और ये मेजर ये लोग हैं, बाकी तो सब छोटा छोटा है. तो दिस सूरज फिनवेस्ट हैज गॉट दीज मेनी अमाउंट ऑफ शेयर्स. 47% इसके शेयर है, 15% इसका प्लेज है, इसका 16% प्लेज है और इसका 15% प्लेज है. तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, whatever the number is, all these numbers are shares are pledged. The good part is, ये what is the trend of this pledge? If I go to the archives over here, this is 23. Let's flop down to 22. मार्च में आ जाते हैं. एक साल पहले क्या था? See the number of pledge, and see this number 319,12614, and see this number over here. Reducing. अरे वाह, कितनी अच्छी बात है. See this number over here, and see this number over here, and then see this number over here, and see this number over here. Wow, this is reducing, man. कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका. दिस इज रिड्यूसिंग. सर आपने वो बाद में दिखाया वो प्रीवियस ईयर का था कि नेक्स्ट ईयर का था? मतलब प्रीवियस ईयर का था. कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है. दिस इज रिड्यूसिंग. द स्टेक ऑफ द प्रमोटर इज आल्सो रिड्यूसिंग. हैव अ लुक. द स्टेक ऑफ द प्रमोटर इज आल्सो रिड्यूसिंग. मार्च 2019 और 2020 में 10% स्टेक बेचा है. क्यों? क्योंकि इसके पहले मैं इतना ज्यादा प्लेज कर चुका था कि मेरी बिजनेस को खड़ा करना ही वाइबल नहीं हो रहा था. तो वेयर इज द बीएससी का वेबसाइट का पेज? मार्च 2019 आर्काइव्स. लेट्स गो टू मार्च 2019, 19 एंड 20. तो कहाँ गया यार ये रहा. तो लेट्स रैंडम खोल रहा हूँ मैं. यहाँ पर इनका प्लेज का क्या हालत है. वाओ, बीएससी बोलती मत देखो डेटा. क्या करोगे डेटा देख के? 2020, 19, 20 सितंबर तक. सी डेटा ही नहीं आता है. कितने होशियार लोग हैं ना ये खोलूं मार्च 20 पब्लिक प्रमोटर. अभी तो मेरे ये जो सिंगल प्रमोटर्स थे ये भी सारे प्लेज पड़े हुए हैं. 1 करोड़ 16 लाख शेयर में से 30 लाख शेयर प्लेज है. ये सारे प्लेज पड़े हुए हैं. और जो इनकी ये फर्म्स थी, 98% ऑफ द फर्म शेयर्स ऑफ दीज प्रमोटर्स, जो दिस इज द टोटल सम, एनी अदर, दिस इज द टोटल सम. तो 98% ऑफ 20,84,000 शेयर, 20,40,000 शेयर प्लेज पड़े. तो दैट मीन्स व्हाट वाज द होल्डिंग ऑफ दिस गाय दिवाकर? 10%, 10%, 9%. इनका टोटल करूं तो 46%. मोटा मैं राउंड ऑफ करता हूँ. 46% of the stake was pledged, right? And what were these guys doing with this pledging? ये आपको कोई डिटेल नहीं देते थे, आपको कुछ नहीं बताते थे. What were they doing? They were making इमामी डबल बुल सीमेंट. ये रहा इमामी डबल बुल सीमेंट. और आपको बड़ा अच्छा YouTube का एक वीडियो मिलेगा. ये रहा. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल बुल सीमेंट के बारे में. ये बड़ा अच्छा इनका एक वीडियो था. वेलकम टू इमामी डबल बुल सीमेंट. ये भी नहीं है, फेसबुक पर आएगा. इमामी डबल बुल सीमेंट कंपनी वीडियो. ये रहा.
देखो कितना अच्छा वीडियो बनाया। February 2017। साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि हम अपने वेस्ट बंगाल के कस्टमर्स के लिए एक तोहफा लेके आए हैं। हमारा पनागढ़ का प्लांट जो कि दुर्गापुर के पास है, जिसमें कि हम लोग करीबन 2.5 मिलियन टन सीमेंट सालाना बनाएंगे, वो आपके लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये इनका प्लांट तैयार हो चुका है। दिस इज February 2017। तो इसका मतलब ये बदमाशी पहले भी करी होगी। आई होप आई एम स्टिल ऑडिबल। यस सर, ऑडिबल। तो इसका मतलब ये इन्होंने बदमाशी पहले भी करी होगी। जब फरवरी में वो प्लांट स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा पहले आके देखते हैं 15-16 में। तो इसका मतलब ये बदमाशी कब से चल रही है। देखो 60% या प्लेज हो चुका था। So why was a company into making FMCG products wanted to go in cement? और पैसे नहीं थे ये काम करने के लिए। पैसे कैसे उठाए? मार्केट कैप जो बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ FMCG, वो सारा का सारा प्रमोटर स्टेक प्लेज होती जा रही थी। एंड सर, अगर प्रमोटर स्टेक रिड्यूस हुआ है मतलब प्लेज इन्वोक हो गया लगता है। नहीं, इन्वोक नहीं हो गया है। उन्होंने क्या करा है, प्लेज को रिलीज कराने के लिए प्रमोटर स्टेक बेच दिया। हाँ, वही मतलब इफ ही डजंट पे द लो तो प्लेज इन्वोक हो जाएगा ना, मतलब उसका स्टेक कम हो जाएगा। इन्वोक तब होता है जब लेंडर खुद बेच देता है। लेंडर को इन्होंने पैसा दिया है, लेंडर को नहीं बेचने दिया, लेंडर को इन्होंने पैसा दिया है बराबर। पर अपना जो अनप्लेज जो दूसरा स्टेक था ना, वो दूसरा स्टेक को बाजार में बेचा है 10% को। किसको बेचा है? किसी मोटे हाथी को बेचा है। लो सी, from 17% they DI has gone up 31%. So they did a deal with some fund manager or a fund house और फंड से पैसा उठाया है। तो इन्होंने होशियारी करी, फ्लोट मार्केट में नहीं जाने दिया। अगर मैं ये पब्लिक में बेचूंगा तो मेरा शेयर की वाट लग जाएगी। So I given it to a fund. So again the market have started going up, so that fund also slowly, quietly started reducing. So the float did not move out and they were able to depledge. Now see how the games are played. What is this? Imami Paper Mills Limited. Imami Paper Mills Limited is a listed firm. Imami Realty is a listed firm. So Imami Paper Mill का तो पेपर का काम होगा। EMAMI Paper Mills Limited, इसका मार्केट कैप 700 है। कभी ज्यादा भी रहा होगा, कभी कम भी रहा होगा। अब इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड के अंदर प्रमोटर कौन है? 75% स्टेक इन्हीं के पास है। वही आगे नाम दिवाकर और सुन्ने और वो सारे इन्हीं के लोग आगे। सो 700 करोड़ का 75% कितना होता है? मोटा मोटा स्टॉक गोज अप डाउन अप डाउन। 15-16 में 18 में 250 रुपए का रेट होता था, आज 100 रुपए का रेट है। तो इससे मतलब 1500 करोड़ की मार्केट कैप होती थी 250 रुपए के रेट में। तो 1500 करोड़ की मार्केट कैप में 75% प्रमोटर का हो गया, तो कितनी वैल्यू बनी? कितनी वैल्यू बनी? 1200 करोड़ से थोड़ी कम सर, 1100 12 से थोड़ी कम। तो मैं 1200 को आधा कर दूं, 600-700 करोड़ की होल्डिंग कंपनी की वैल्यू बनेगी। तो वो जो 600-700 करोड़ की होल्डिंग कंपनी की वैल्यू बनेगी, उससे इमामी का शेयर ऊपर जाएगा 600-700 करोड़ से। अब जब इमामी पेपर भी गिर गया तो इसकी मार्केट कैप को 600-700 करोड़ का हिट आएगा, जो कहीं ना कहीं डाउनफॉल इसके अंदर भी इफेक्ट करेगा, राइट। और ये गुडविल को राइट ऑफ करा जा रहा है और इसको बार बार वो खरीदना पड़ रहा है। ग्रोथ, they don't have a growth. They had a Zendu Pharma, they had all good products, they don't have a growth. So that is why they have to sell again and again. Now what they are doing? They are buying Brillare और पता नहीं कौन से products they are buying again. कहाँ देखा था हमने? नहीं क्यों देखा था? Yes, Brillare and Helios, and they gave loans to Helios, which they were not able to recover. So on Helios become a subsidiary, the group has performed a PPA, performed purchase price allocation, and the purpose and accounting under this they recognize an intangible of 46.56 crores. That means 46.56 crores has gone extra than the book value of Helios. और Helios अगर इतना ही गंदा बिजनेस है तो why give it an extra valuation? And the goodwill is 60 crores by consolidating the numbers.
तो इसका मतलब ये है कि 60 करोड़ तो बिजनेस में से एक्स्ट्रा जो है बाहर निकल गया, क्योंकि किसी को आप लोन दे रहे हो तो आपको पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी धंधे की क्या कंडीशन होगी? Now they say the group has revalued its previously had interest in Helios at the date of acquisition and recognized a fair value gain amounting to 33 crores. और ये सारा का सारा पैसा 33 करोड़ अदर इनकम में मैंने ऐड कर दिया है। अरे भैया, आपने किसी को लोन दिया, वो आपको चुका नहीं पड़ रहा, आप उसी के एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हो और उसके ऊपर आप 60 करोड़ का गुडविल खड़ा कर रहे हो। तो 60 एंड 90, 60 एंड 33 मतलब मोटा मोटा 100 करोड़ गायब। पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। एंड दे स्टार्टेड बाइंग अगेन दिस कैनस लूपर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कंपनी 30% इसको ले लिया। देन दे सेड कि मैंने ब्रिलेयर में प्रेफरेंशियल भी किया इतने अमाउंट का और फिर मेरा इतना बढ़ गया, नाउ आई हैव गॉन इन बॉट फुल 100% ऑफ ब्रिलेयर, और जितना भी मेरा एमोर्टाइजेशन है, जितना भी मेरा गलती हो गया है, कोई बात नहीं, पब्लिक का पैसा मैंने गलत जगह जाया कर दिया, गलती मान लेता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, राइट ऑफ कर रहा हूँ ना। मतलब ये तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड को एक्विजिशन करके पैसा जो है सब्सिडरी में ट्रांसफर करके वहां से निकाल रहा है वो, क्योंकि वो और एक अब बार क्योंकि मुझे एक्विजिशन कर रहा है, मतलब वो तो पैसा ही साइफन आउट कर रहा है। क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए, इसलिए मैंने फिर से प्लेस करना शुरू कर दिया। पैसा तो है ही नहीं ना ग्रो एक्विजिशन करने के लिए। और अगर मैं इसके वीडियोस पढ़ूंगा, इमामी इज द नीश प्रोडक्ट एंड द लीडर एंड नवरत्न ठंडा ठंडा कूल एंड ज़ेंडू एंड बोरो प्लस एंड केश किंग एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स, और इमामी 7-in-1 एंड डर्मी कूल और सुपर्ब कंपनी, सुपर्ब नंबर्स। अच्छा, इमामी लिमिटेड इज आल्सो अ promoter in a company called इमामी रियलिटी लिमिटेड व्हिच इज अ रियल एस्टेट बिजनेस। अभी रियल एस्टेट में जो मेरे पास मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, वो रोज रोज तो सेल आएगी नहीं, सीधा सेल्स इज लंपी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जो भी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग बनेगी सेल आ जाएगी, जैसे नेक्स्ट बिल्डिंग बनाऊंगा तो वो रेवेन्यू सो जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग बनाऊंगा, इसके जो मेरे एसेट्स होंगे, एसेट्स विल नॉट बी, आई विल बी हैविंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो मेरे पास बुक वैल्यू पे होंगे, रियल वैल्यू पे नहीं होंगे। सी, इन्वेंट्रीज 1000 करोड़ की बिल्डिंग मुझे देनी है, 1000 करोड़ की जब बिल्डिंग आएगी तो आई गेट 1000 करोड़ ऑफ कैश। तो दिस कंपनी द स्टॉक प्राइस विल गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसे ऐसे चलेगा। देख लो, दिस and see this, you see this and you see this। तो जब ये चीजें यहाँ जाएंगी तो इसका जो होल्डिंग का वैल्यू मिलेगा इमामी को, वो भी तो मिलेगा। उससे वो कह रहा है कि मैं अपने प्लेज शेयर्स कम कर लूंगा। ठंडा ठंडा कूल, सर में तेल लगाओ और पैसा कमाओ। सर इनका ओवरऑल भी ना, जो आई हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इमामी लिमिटेड अराउंड 15-16 years बैक। एक टाइम पे इनका एक ही प्रोडक्ट चल पाता है और वो किलर चलता है। जैसे एक टाइम पे ठंडा ठंडा तेल इनका चलता था, शाहरुख खान इनका ब्रांड एम्बेसडर था और सिर्फ ये बिकता था। एक टाइम पे सिर्फ बोरो प्लस बिकता था, तो बेसिकली विंटर्स में ये बोरो प्लस बेचते थे, समर्स में ये ठंडा ठंडा तेल बेचते थे। ओवरऑल इनके जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा वेगेंट तरीके से, जैसे आप वो डबल बुल सीमेंट का वीडियो दिखा रहे थे ना, ये इसी तरीके से बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, बहुत मोटा मार्केटिंग बजट बनाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। बट डाला मैंने आपको एक वीडियो डाला, और यही वीडियो देख के मैंने इमामी की रियलिटी लिमिटेड के खूब सारे शेयर्स खरीद दिए थे। इमामी के जो आया बिल्डिंग, बहुत आप सुपर जो बिल्डिंग। राजस्थान की बात कर रहे थे, गोयनका जी एंड अग्रवाल जी, एक्चुअली जब तक मैनेजमेंट उनके हाथ में था तो ओवरऑल डुबिशियस एक्टिविटी तो कभी नहीं होती थी बिजनेस में। आप देख लो, और नंबर्स आर सेइंग समथिंग एल्स, अब आपके सामने है, क्लियर है। करेक्ट। मैं तो मिला हूँ राधेश्याम गोयनका जी से, कलकत्ता में मिला हूँ। दोनों आरएस का, इमामी मिल्स का, पेपर मिल्स का काम किया है मैंने। दोनों आरएस गोयनका जी और ये दोनों अग्रवाल जी को मैं भी काम किया है। उनके हाथ में जब था वो देवर वेरी, बिरला से आए हुए हैं, बिरला में पहले काम करते थे दोनों। वेरी क्लीन। आपके सामने कलकत्ता की कंपनी, कलकत्ता के लोग बड़े होशियार होते थे।
No doubt about that. हमारे पास भी एक कलकत्ता का मेंबर है। सर एक कंपनी आ रहा है, आप देख सकते हैं, वो भी ऐसा। सर कौन है जी कोलकाता की? डबल झोलू कंपनी था जो गुडविल पे पूरा खेल गया और बाद में सब बैंक वालों को किंगफिशर। कौन है जी कलकत्ता का? ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों को फाइंड करना है कलकत्ता से कौन है यहाँ पे। No, because I am from Calcutta ना सर, मैं पुणे कलकत्ता दोनों से हूँ, मतलब अभी तो फिलहाल कोलकाता में ही हूँ। आई एम बंगाली एज यू में आप ऐसे ही कलकत्ता में पूछ हो? रहा था। आप अभी कलकत्ता में हो? No, now in Jeddah sir, but I am a Bengali brought up in Maharashtra, so I have a home at both places. क्या बात है सर। दीक्षा जैन मैम इज फ्रॉम कलकत्ता। Oh, okay, okay. तो हेमंत बा बोले कि हेमंत भाऊ बोले? तो देखा, नाम बड़े और दर्शन खोटे। सर ये इसका भी देख लो ना, किंगफिशर का, बिकॉज उसने तो गुडविल के ऊपर लोन लिया है। मेरे पास तो एक स्टेप और आगे गया। मेरे पास तो किंगफिशर की उसके डूबने से पहले की सारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं। अगर किसी को सीरियसली सीखना है तो वो जाके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो कि यार अगर मैं 2004-5 में जब किंगफिशर भागा मालिया साहब पैसे खा के, तो क्या उन एनुअल रिपोर्ट से मुझे पढ़ के समझ आता था उस टाइम? मेरे पास तो है। मेरे पास तो एनरॉन की एनुअल रिपोर्ट्स भी हैं, मेरे पास तो वॉलमार्ट की भी है, अमेजोन की भी है, वे बैक फ्रॉम 1970s। आई हैव तो रेड ऑल। सर जब हम एमबीए करते थे ना, तो उस टाइम हमें एक बात हमेशा बताई जाती थी कि विजय माल्या कभी भी एयरलाइन चलाना नहीं चाहते थे, उनके फ्रेंड प्रफुल्ल पटेल चाहते थे कि वो एयरलाइन चलाएं। पता नहीं वो, मैं तो कभी एमबीए किया नहीं। आई एम तो अब तो सबको पता है मैं तो 12वीं फेल हूँ। अब तो अनुपम जी को भी पता चल गया। So you see, नाम बड़े और दर्शन खोटे। So never go by the name, go by your own analysis. What is happening, right शुक्ला सर? सर राइट सर। या सर इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो सारा इन्होंने एक्विजिशन करा और ये सारा एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी स्टूपिड, so that means it was all deliberate and I mean there was nothing like No sir, bad judgment. It was not deliberate. See what went wrong. They went and acquired Kesh King. Kesh King was a brand. It was a private company serving Kesh King. So they bought. I think their sales were around 300 crores or something. So they bought it for 1,710 crores. They paid an extraordinary valuation for which was 5.5 times sales. So जब इन्होंने Kesh King लिया and they were not able to ramp up production, they were not able to show the numbers. So one analyst on CNBC asked, who is the management? And luckily I still remember that interview. So he said we were not aware of channel stuffing. Channel stuffing is मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को जब वो स्टॉक भेज रहा है, तो they were always the stock in the channel pipeline, and the dealer distributor was not willing to buy and keep more stock on their shelves. Right. So suddenly with 5.5 times 300 crore sales, जैसे ही इन्होंने टेक ओवर किया, they lost sales. Okay. So when they lost sales, the viability of the business went down. So the Indian IAS accounting rules are so stringent. In US we go in the GAAP rules, which are not that stringent, which is more easy to manipulate. In IAS are more stringent rules. So as per Ind AS, they took a first hit of 260-70 crores. कि मेरे से गलती होगी, I take a write off 270 crores. It's a public limited company. It is not your own money. Public is equally invested with you. So public, and they told in the con call, this is just a write-off, and when the write-off will open and when the amortization will be done, and Emami would be a very good big company, and we are having more profits and all. See, the profits were going up, the ROCs and ROEs were going up, but the market was never willing to value the business. कुछ तो गलती हो रही थी ना, because they were pledging again and again and again, and एक प्लेज को छुड़वाने के लिए दूसरा प्लेज किया, दूसरे प्लेज को छुड़वाने के लिए तीसरा प्लेज किया। अगर इतने ही प्रॉफिट जा रहे थे तो इतना प्लेस करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि एक तो केस के लिए लिया, then they went and bought the cement plant, and what happened, they installed all computerized machineries और जो automatic cement plant में काम होता था, whatever the thing they did, and then they said कि हमारे को cement plant चलाना ही नहीं आ रहा, then they sold off the cement plant also, taking a loss. So in a way, this was a case of being over ambitious without, doing your proper homework.
अभी जैसे राकेश सर बोले, अभिषेक सर बोले, दे वर वर्किंग विद द कंपनी, तो एल्डरली मैनेजमेंट जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट थी, दे स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम जीरो, बट जो सेकंड, सो the learning is when the management changes, when the generation changes, businesses can go down. So if you are looking at a management change pattern, then mostly what will happen कि फादर तो इंडिया में पढ़ता था, वो तो उसको तो ज्यादा एजुकेशन मिली नहीं, बेटा अमेरिका से इंजीनियरिंग क्या है, वो कुछ अच्छा करेगा, that guy will take the business down also. That's giving up the last power also. I think that is what people are saying nowadays. So all kids who are studying in US and Stanford and other universities, it's not necessary you have studied from a big university so you can come and make the business bloom or grow. It is not necessary. You can make bigger blunders also. So how do you judge the management? What is the major cusp of judging the management? See, no annual report will tell you that, nobody will tell you that, no price chart will tell you that. अगर management अच्छा है, business will perform. If the management is not good, business will not perform. How do you judge the management? Simply by their capital allocation decisions. If I am destroying value, if I am allocating capital to a wrong place, business has to go down. No, कोई चार्ट का सपोर्ट उसको रोक नहीं सकता, कोई इंडिकेटर उसको बचा नहीं सकता. If the capital allocation decisions are bad, and they were smart, and they were hiding these capital allocation decisions. Rather, एक APL का केस स्टडी सुनाता हूँ पुराना, मैंने वीडियो भी शेयर किया, पता नहीं आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा. They went and bought a 2 lakh metric ton plant from Shankara Buildcon. उसका एक सब्सिडी था Taurus Agile. Shankara said we were not able to run the business. The business was not very great and plant चल नहीं रहा था. So हमारा 150 करोड़ का plant है, we are selling for 70 crores. So they sold the plant to APL promoter for 70 crores. And within 2 quarters or within 1.5 quarters, APL was producing high margin products from that plant at optimum capacity. या 3 महीने में कोई जादू लग गया प्लांट एंड मशीनरी को, जो पहले प्लांट चल नहीं रहा था, 3 महीने 4 महीने में वो एकदम हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनाने लग गया. Then Shankara said, no, we need that 2 lakh tons of steel because that is our bread and butter. We cannot survive without having that 2 lakh tons of steel. So when they sold their plant for 70 crores to APL Apollo, they did an agreement that we will buy 2 lakh tons of steel from you. So why you were selling the plant? The reason given by the management to sell the plant was to pay down the debt. Right? And what was the agreement with the APL management? Now 2 lakh tons you will give us under billing. 70 करोड़ मैंने आपको 150 करोड़ की चीज 70 करोड़ में दे दी, बाकी का मेरे को 70 करोड़ आपसे लेना है, तो वो छोटा आप मेरे को अंडर बिल करके मेरे को करोगे. एंड व्हाट विल हैपन, यू विल गेट मोर वॉल्यूम्स, थोड़ा सा आपका ब्लेंडेड, आप इतनी बड़ी कंपनी, आपका ब्लेंडेड मार्जिन पॉइंट्स में कम जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा. व्हाट आई विल गेट मार्जिन इंक्रीज, और मेरा इधर से डेट पे हो जाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट भी खत्म हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट आर्टिफिशियली शूट अप करेगा, विच इज नॉट सस्टेनेबल. टॉप लाइन ग्रोथ भी दिखा दिया ना सर उसने. वो तो आज की बात है, मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ. देन एपीएल को क्या फायदा होगा? एपीएल बोलेगा कि आपका ये जो 2 लाख टन का प्लांट है, इसका कुछ डेटर क्रेडिट तो होगा, बिजनेस तो है. सो यू डू वन थिंग, माय डियर शंकरा, यू पे ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स बट यू डोंट कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स. आई एम गिविंग यू एडवांस, 70 करोड़ का डील है, 2-3 महीने लगेगा डील पूरा करने में. आई एम गिविंग यू 10 करोड़ एडवांस, यू पे ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स on my behalf. Don't collect money from the debtors. Once the merger is done, once that Taurus Value Agile 2 lakh ton plant gets merged in APL's balance sheet, then he will collect the money from the debtors. So what will happen? Flow संकट क्रेडिटर से inflate हो जाएगा. What will show? He will say, I am such a strong business, my cash flow has gone up. My debt and I am onto some high margin products because मेरे को APL से अंडर बिलिंग आ रहा है, तो दोनों का फायदा, दोनों के स्टॉक बढ़ेंगे. ये क्या हो गया? Am I audible? Audible sir, audible. I logged off my, एक सेकंड और.
तो शंकरा का क्या होगा कि मेरे को सस्ते रेट का माल मिल रहा है, बिकॉज वो मेरे को बाकी के 70 करोड़ भी एडजस्ट करना है जो मैंने उसको सस्ता करके दे दिया, तो मैं अपनी डेट भी चुका दूंगा और उससे क्या करूंगा कि मैं अपना मार्जिन भी बढ़ा लूंगा। और एपीएल क्या करेगा, मेरा कैश फ्लो बढ़ गया और मेरी सेल्स बढ़ गई, दोनों के मार्केट कैप क्या होंगे, ये डील से दोनों को फायदा, छोटा भाई को भी फायदा, बड़े भाई को भी फायदा, दोनों का मार्केट कैप अप, पब्लिक भी खुश, मार्केट भी खुश, सब लोग खुश, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, इसका पूरा मैंने एक केस स्टडी शेयर किया हुआ है, एपीएल केस स्टडी, इट्स अ 2-3 मिनट वीडियो, एंड इसका मैंने वो लॉजिक भी पूरा शेयर किया हुआ है। आप इसको आई कैन रीपोस्ट दैट लिंक इन द डिस्कशन ग्रुप, आई हैव रीपोस्टेड दैट लिंक, केस स्टडी एपीएल अपोलो, जाके देखो। दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो सिनेरियोस। एंड अगर आपको देखना है तो आई कैन शो यू, गिव मी 1 सेकंड। और आप उसको, मेरी आवाज आ रही है आपको वीडियो में? एक सेकंड, दिस इज द वन एंड आई थिंक दिस इज 2016-17 ईयर। कैन यू हियर? आप उसको फ्रॉड एनालिसिस बोले या फॉरेंसिक बोले या केस स्टडी बोले, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो देखते हैं केस स्टडी में क्या हुआ। एक ये बहुत फेमस कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है अब तो, ये इसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। और आप लोगों ने कितने इसमें ब्रेकआउट्स करे होंगे या ट्रेड्स करे होंगे, बहुत सारी चीजें करी होंगी। और ये बहुत मार्केट लीडर्स हैं, 4 तरीके के ये पाइप्स बनाते हैं, स्लीव पाइप रियलाइजेशन। बाकी का शंकरा वाला उस प्लांट को अच्छे से चला नहीं पा रहा, राइट। So I posted you the link, please watch so you can get more idea how acquisitions help the companies to fudge their cash flow numbers. So this is what my dear Imami Limited is trying to do. सर एक वो भी है ना, मतलब नॉर्मली जनरली एक वो भी बोलते हैं ना कि somebody who is trying to do inorganic growth by doing a serial acquisition, that is also red flag. ये तो पूरा red flags है ना, this is one of that red flag which I have just shown you. See, and I still remember the numbers, थोड़ी ज्यादा मेरी अभी काम करती है। देखो मेरा डेप्ट 293 करोड़ से 223 करोड़ हो गया, 70 करोड़ गॉन, परफेक्ट, राइट। आई स्टिल रिमेंबर द नंबर्स। अच्छा ये खेल नहीं है, लेटेस्ट में एक खेल और हुआ है अभी, स्पेसिफिकली विद एपीएल एंड शंकरा, स्पेसिफिकली। आई थिंक वो मैंने प्रीवियस कॉल्स में आप लोगों को शेयर किया हुआ है, इसका एक जिस्ट दे देता हूँ। तो व्हाट दे डिड एट 750 रुपीज दे बॉट 10 लाख शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट ऑफ शंकरा बिल्डकॉन एपीएल ग्रुप। अगर आप ये परसेंटेज देखोगे, और ये परसेंटेज में क्या होता है कि वी गेट एवरी क्वार्टर वी गेट द परसेंटेज, so this is the percentage they bought and they बीच में बेच दिया and they have 6% over here, whatever the thing is, so they bought was 4% stake। अगर मैं ट्रेड्स में जाकर देखूंगा तो मुझे एग्जैक्ट रेट और एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। these are 10 lakh shares at the price of 750 rupees। next what they did was they bought 7,55,000 warrants at a price of 755 rupees। in warrants you pay 25% upfront, 25% in the month of in the time of 18 months, right? So they paid 26 crores। आपको जाके अनाउंसमेंट्स देखना है, मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में दिया हुआ, आप देख सकते हो। they paid 26 crores to the company, which is somewhere around here, somewhere around they paid 26 crores और बाकी का they had to pay 80 crores। शंकरा ने ये हवा फैलाई कि एपीएल से मुझे 80 crores आना है, which is 79.76 crores एग्जैक्ट नंबर, जिससे मेरा ये डेप्ट चुक जाएगा। ये मेरा डेप्ट चुक जाएगा ना, उससे क्या होगा कि मेरा ये इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगा। ये मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगा ना, 60 करोड़ ऑफ प्रॉफिट 24 करोड़ ऐड करोगे, मेरा प्रॉफिट 80 करोड़ हो जाएगा विदाउट डूइंग एनी थिंग। ये 30 के अंदर ये 20 ऐड करोगे तो मेरा 60 हो जाएगा, व्हाट सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कहानी हुई। सो व्हाट हैपेंड, द स्टॉक प्राइस फ्रॉम 750, एपीएल का नाम आया ज़ूम, राइट। यहाँ पे जाके क्या किया इन्होंने, स्लोली दे स्टार्टेड डंपिंग दोस 10 लाख शेयर, और वो 10 लाख शेयर डंप करके फिर वो उनकी जो वारंट्स थे जो 80 करोड़ उनको देना था या वो देना था,
उन्होंने वो 14 लाख वारंट्स कन्वर्ट कर लिए, बस थोड़े से जो बच गए 7-8 लाख शेयर बेच दिए, 2-2.5 लाख शेयर करके उनका स्टेक हो गया 6% इन द कंपनी. दिस इज शंकरा बिल्डकॉन. नाउ व्हाट द स्टोरी इज, डीमर्जर ऑफ, नहीं इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पर है. Everybody is able to in see the the screen. look at screen. Now if Yes, you sir. go and read the current opportunity section or the M&A section, you will find Shankara is doing a demerger. What is this doing? They say we got two businesses. We got a marketplace of 4,000 crores of sales, and we got a steel plant which we are not able to run at. Again, that Taurus value is of 2 lakh tons. So the sales of 2 lakh tons is 700 crores, but there is no profit because we are not able to run that. And there is a marketplace which we are doing a sales of 4,000 crores. तो 4,000 में से 700 करोड़ तो स्टील प्लांट की सेल खत्म होगी, because the steel plant is providing the steel products to Shankara, and Shankara is a retailer. So actually the sales is just 3,300 rather than 4,000 crores. क्योंकि वो प्लांट तो मैंने डीमर्ज कर दिया, and we'll be having two different managements and two different things. So once you do a demerger of a plant having sales of 700 crores and losses, of course उसका मार्केट कैप गिरना ही गिरना है. कौन रखेगा ऐसे स्टॉक? जैसे ही डीमर्जर होगा, जितने इन्वेस्टर्स होंगे सारे के सारे उसको बेचेंगे. जैसे ही वो बेचेगा, कौन जाके उसको बाय करेगा? What makes business sense? Of course APL Apollo. And he has guided in this call कि by the end of 2025 I'll be having a 5 million ton capacity. अभी उसकी कैपेसिटी 4.1 मिलियन टन है, जिसमें वो रायपुर का टिल्डा का प्लांट और दुबई का प्लांट बना चुका है. हाँ, यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. Now he has to make 0.9 million ton capacity more. 0.9 is 9 lakh tons, right? 2 लाख टन शंकरा का उठाना है. ओके, ऐसे कईयों के और मरे प्लांट उठाने, हो गया 5 मिलियन टन, जो अगले 1 साल में 3 एक्विजिशन कर लेगा. तो शंकरा का जो डीमर्जर है, जो मैंने आपको एमएनए के अंदर भी दिया हुआ है, करंट अपॉर्चुनिटी के अंदर भी दिया हुआ है, एमएनए का आपको मैंने एनोटेटेड आर्टिकल भी दिया हुआ है, ये सारा खेल एपीएल के लिए हो रहा है. बिकॉज मी द रिटेल इन्वेस्टर will definitely sell it, and that is what our demerger pattern is. And your charts will be bad, and above that there will be no chart. So there will be no RSI, no indicator, nothing will work, because there will be no price action, no chart, and you will sell it because you are a holder in Shankara, या पता नहीं कहाँ से शेयर आ गया, you will sell it, and smart investors like Shukri will buy it. And who's going to buy that plant? Of course APL Apollo, because that makes business sense for him. And his words in his con call, the words are matching what is happening. This is my thought process. मेरे पास कोई inside information है नहीं. This is my thought process. It may be right, it may be wrong. I don't know. But हो सकता है ये. Right, अभिषेक सर? हाँ जी सर. सर इसमें एक क्वेश्चन है. शंकरा में एपीएल अपोलो का स्टेक तो जितना अभी आपने दिखाया 6% या 7% या पता नहीं हिडन भी होगा, उतना ही दिख रहा था. हिडन भी है. तो उसमें एक्चुअली शंकरा वाले को क्या फायदा हुआ? उसने तो अपनी बिजनेस की पूरी वाट लगा दी, सेल्स का ग्रोथ दिखा दिया, लेकिन मार्जिन तो उसके पूरे इरोड हो गए. तो उसको फायदा क्या हो रहा है? नंबर्स बढ़ रहे हैं बस. सर शंकरा जिंदा है क्योंकि संजय गुप्ता जी ने उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे रखी, नहीं तो शंकरा मर जाता. शंकरा जिंदा ही नहीं है. तो मतलब बेसिकली वो मर रहा था, तो उसको एपीएल अपोलो ने बोला कि भाई तू मेरे साथ सेटिंग कर ले कि मैं तेरे को बचा लूंगा ऐसे. हाँ, और अब होगा क्या, टॉरस वैल्यूएशन का 2 लाख टन जाएगा एपीएल के अंडर, और एसजी मार्ट जो ये ऐसा ही बिजनेस है जिसमें एपीएल अपोलो मार्ट भी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एसजी मार्ट में मर्जर होगा, और एसजी मार्ट शंकराओं को B2B सप्लाई करेगा 2% एबिटा मार्जिन दिखा के. तो ये जो 4,000 करोड़ की ये शंकरा की सेल्स है, ये चली जाएगी एसजी मार्ट से. APL will be having 1% EBITDA margin or 0.5% EBITDA margin. ये स्टॉक प्राइस तो मार्जिन और गिरेगा, मतलब गिरेगा ना. कहाँ से कहीं ना कहीं से किसी को तो काट के EBITDA मार्जिन चूज के निकालोगे. So then Shankara says, I am going to expand my sales to 10,000 crores, and what I am doing is I am getting into non-steel business where the EBITDA margins are 5%, which is paint business.
So this paint, steel products, bathroom products, tiles, cement, all what are the building material products is will be supplied by SG Mart to Shankara. And Shankara says, I'm going to have a 10,000 crores. So on the back end, SG Mart is going to have a 10,000 crores in the next 2 years from Shankara. So this is one business agreement. तो ऐसे एसजी मार्ट के बहुत सारे एग्रीमेंट है. दो भी एग्रीमेंट किया तो 20,000 करोड़ की सेल तो चुटकी में जाके आ जाएगी. So SG Mart जो कहता है कि मैं 20,000 करोड़ सेल कर लूंगा in the next 2-3 years, 50% is going to come from Shankara. अब अगेन जो केस स्टडी का वीडियो मैंने आपको डाला है, अगर वो टॉरस वैली हो जाएगा, फिर से वो प्लांट 2 लाख टन का प्लांट जो टॉरस वैली कह रहा है कि मेरे से तो चल नहीं रहा भाई, मेरे तो प्लांट खत्म हो गया, अगर उसको फिर वो डी वैल्यू खरीद लेता है, राइट, एंड अगेन ही सेल्स a product, steel product, which is 60 to 70% of Shankara sales to Shankara for say 0.5% under billing, हो गया ना, शंकरा का तो EBITDA मार्जिन आ गया ना, उसको सेल मिल गया. And then what will happen, Shankara has got 3 businesses, retail business, channel business and एक और है उनका. तो retail business is having a EBITDA margin of 3%, बाकी चैनल और जो शॉप्स का बिजनेस हैज एन EBITDA margin of 1%, which is बेकार. अब वो ये कहता है कि यार मेरी 800 करोड़ की सेल चैनल और शॉप्स बिजनेस के अंदर है, हम मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे मार्केट ट्रेंड सीखने को मिलता है. बट आई हैव टू गिव देम उधारी, दैट इज व्हाई आई रिक्वायर वर्किंग कैपिटल. रिटेल बंदा जो मेरी दुकान पे चढ़ता है सामान खरीदने के लिए, वो तो मेरे को कैश पेमेंट देता है, आई डोंट हैव टू गिव देम उधारी. सो देन व्हाट शंकरा विल डू आफ्टर दिस डीमर्जर एंड आफ्टर द कोलैबोरेशन विद एसजी मार्ट व्हिच इज ऑलरेडी डन, दे विल से we are going to close down, we are shutting down our channel business and our shops business जो मैं direct shops को देता हूँ. So what will happen, this 4,000 crores of sales, 700 will go out from the steel plant, so comes down to 33, 800 will go out from the channel business. तो ये 4,000 करोड़ की सेल सीधा आपकी 22-23 करोड़ रह जाएगी and your margins will come down. तो इसका बिजनेस मॉडल एकदम जबरदस्त है. मतलब सारा एपीएल अपोलो का सारा रिस्क उसने बाहर निकाल दिया है. मतलब वो फाइनेंसिंग का, वो रिसीवेबल का रिस्क एसडी फिनसर्व में मूव कर दिया, और सेल्स का वो ये शंकरा पे डाल दिया. तो मतलब एक्चुअली एपीएल अपोलो एंड एसडी फिनसर्व आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, एंड मरेगा तो ये शंकरा मरेगा आगे जाके. आगे तो सुनो. Then he says, I'm going to take my this 2-3,000 crores sales to 10,000 crores, but I'm not going to expand my stores because मेरे पास पैसे ही नहीं store expand करने के लिए. So I got 96 stores. If you want to increase the sales, you have to expand your reach and stores, which you don't want to expand because पैसे ही नहीं. तो सिर्फ मार्जिन दिखाने के लिए मैं पेंट बेच रहा हूँ, इसमें 5.5% EBITDA मार्जिन है, और बाकी का मैं स्टील बेच रहा हूँ 60-70%. तो बेसिकली एपीएल ग्रुप इज गेटिंग जमाया काउंटर, जमाया दुकानें जहां अपने रिटेल काउंटर को वो अपना इन्वेंट्री बेचेंगे. सो इफ आई गो एंड ओपन अप 100 स्टोर्स इन फुल ऑफ साउथ इंडिया, आई नीड सो मच ऑफ मनी. ये बंदा मरा हुआ बंदा मुझे मिल रहा है, व्हाई नॉट आई गो एंड पिक हिम अप, और उसी का स्टॉक को खेल के उसी के स्टॉक में ट्रेड करके पैसा मिल गया और उससे उसी को पैसा दे दिया. द पावर ऑफ मनी. अब ये सारी जो मैंने आपको चीजें बोली, मेरा चैलेंज है, चार्ट पे दिखती है ये सारी चीजें? किसी को दिखी आज तक चार्ट पे ये सब लिंकेजेस एंड ये सब चीजें? हाउ डू आई नो ऑल दिस? बिकॉज आई रीड अक्रॉस द इंडस्ट्री. आई कैन बी रॉन्ग, आई हैव नो शर्म इन सेइंग आई कैन बी रॉन्ग. दिस इज व्हाट माय असेसमेंट इज. सर इसका तो सबसे एक्चुअली जो बेस्ट वो है जो आपने 2 लिंक शेयर किए थे, मेरे को आज भी याद है. एक लिंक शेयर किया था शंकरा का प्रेस रिलीज जहां वो रो रहा है कि भैया प्लांट बेकार है, चल नहीं रहा है, और दूसरा लिंक एपीएल अपोलो जो बोल रहा है कि मैंने प्लांट खरीदा और ये मेरा हाई मार्जिन का है. वो 2 न्यूज आर्टिकल जो आपने शेयर किया था वो मतलब आज भी याद है मेरे को. दिस स्टोरी विल रिपीट इन द नेक्स्ट 2 to 4 quarters. शंकरा का डीमर्जर होगा, 2 लाख टन का प्लांट है, नहीं चल रहा है, 700 करोड़ की सेल है, प्रॉफिट नेगेटिव है. 1 साल के बाद आपको एपीएल इसी प्लांट में से हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो उनके वो गैल्वेनाइज्ड एंड वो
कोटेड पाइप्स ऑन हाई डायमीटर पाइप्स बनाता हुआ दिखेगा। ये 1 साल के बाद शायद आप भूल जाओ, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, आज की डेट में अपने डायरी में लिख लो। 1 साल के बाद आपको पब्लिक मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे सीएनबी चीज मिल जाएगी, देख लेना, न्यूज में पढ़ लेना कि मेरा कंपोनेंट ऑफ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स इन माय टोटल रेवेन्यू, मेरा हाई मार्जिन का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना, हैज गॉन अप विदाउट डूइंग अ जीरो रुपीज ऑफ कैपेक्स। इसको बोलते हैं स्मार्ट खोपड़ी। And it's a smart company to the point that he's made sure कि Shankara is not his subsidiary, because नहीं तो शंकरा का जो भी इम्पैक्ट है एपीएल का बैलेंस शीट या पीएनएल पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज उसका 6% स्टेक है। ये शंकरा डूबे मरे एपीएल को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हाँ, नहीं पड़ने वाला। वो तो चाहते हैं ना डीमर्जर होने को, तो उसका फंड डूबे तभी तो उसको मिलेगा सस्ते भाव में। वो तो चाहता है सब लोग बेचो बेचो। समझ में आया सबको मैंने क्या बोला इतनी देर में? मुझे लगता है अभिषेक सर तो सो गए। नहीं सर, जागा वो। सुना सर, सारी स्टोरी कनेक्ट हो रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ऑल गेटिंग कनेक्टेड। वैसा 0.9 तो ऐसे ही हो जाएगा लग रहा है, बिना किसी एक्सपेंशन के। इसको ले लिया, उसको ले लिया। 2 लाख टन तो ये पड़ा ना, 2 लाख टन तो ये पड़ा। अभी 2 लाख टन का अगर मुझे फ्रेश प्लांट लगाना है, मुझे ग्रीनफील्ड चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे उसके अंदर प्लांट लगाना है, कितना खर्चा लगेगा, राइट? शंकरा का मार्केट क्या कितना जरा देखो अभी। तो मार्केट क्या है अब? शंकरा इज आई थिंक 1700 करोड़ 1700 करोड़ में से मैंने 6% तो फ्री का उठा लिया, वो तो वैसे ही उसकी स्टेक होगी। अब 1700 करोड़ में मेरा टर्नओवर 4000 करोड़ है। अगर मैं टर्नओवर से भी डिवाइड करता हूँ, 700 करोड़ मेरा स्टील प्लांट का टर्नओवर है। तो प्लीज गिव अ रेशियो ऑफ 3300 वर्सेस 700। व्हाट रेशियो यू विल गिव? 3300:700, 1:4.5? Yeah. So please divide 1750 by 5.5 और 5 300 के आसपास, 380 320 300 से 350 से 400 करोड़ का मार्केट कैप बनेगा आपका 2 लाख टन का, which would be half x sales, because sales is 700, which is given in the M&A article, and having zero profits, rather losses. So who is going to buy a company of 300 crores market cap? अरे ये तो मेरे स्क्रीनर के और मेरे टेक्नो फंडा के फिल्टर में नहीं आती। इट इज अ वेरी स्मॉल मार्केट कैप, लेस देन 500 करोड़। मेरे तो स्क्रीन में फिल्टर ही मुझे सिखाया गया किताब में कि 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। छुट्टी, किसी को देखना नहीं है। जिसको भी डीमर्जर में आएगा वो बेचेगा, क्यों? बेकार है। Who wants to buy? The proxies of April Group, and no names will come in your bulk deals and block deals, because you will not even come to know who's bought. This is why the demerger is planned. Please fire up your Google, right? Shankara demerger. They say we're going to demerge our marketplace business, and it is going to move out. See, the demerger is, the steel plant is not moving out. The marketplace business is moving out. So the steel plant will be this company. So Shankara Buildcon जो company है, after the demerger, Shankara Building Products, after the demerger will be Shankara Steel, having nothing. तो इसलिए अगर मुझे नहीं पता, आप लोग M&A डेटा कलेक्ट करते हो या पढ़ते हो, मैंने तो आपको एनोटेट करके सब चीज दे रखी है शंकरा की। तो इफ यू कैन फ्लॉक बैक टू द करंट अपॉर्चुनिटीज थ्रेड, आपको वो समझ आ जाएगा। गिव मी 1 minute, आई विल ट्राई एंड फाइंड दैट आर्टिकल और run a break. So I hope I made it clear what is happening. Yes sir. And चार्ट पे तो ये सब नहीं आता होगा यार, आता है तो मुझे पता नहीं। So don't worry कि if you have missed opportunities in the current opportunities section, you are must to learn. If you are serious, नहीं तो देखते रहो चार्ट। I'll try and find
reduction in share capital, demerger. So M&A articles are good. M&A articles are good, provided who reads them. Nobody wants to read. सबको पका पकाया चाहिए, अभी तो कन्विक्शन नहीं बनता है। और ऐसा नहीं कि मैंने शेयर नहीं किया है, मैंने आपको एनवेड करके शेयर किया हुआ है, मैं आपको पूरी मैगजीन शेयर करी हुई है। धनंजय जी ढूंढ के बताओ ना। सर अब लोग सब लोग ढूंढ रहे हैं, जिसको मिलेगा तो वो कर देगा माफ। डिस्कशन ग्रुप में मैंने तो पढ़ा हुआ सर, और पुरानी कॉल भी सर मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा हुआ था, उसका 2 पन्ना मैंने डाला अभी। हाँ कहाँ डाला सर? जनरल थ्रेड में। क्या बात, थैंक यू सर। सारा डाल दूं? हाँ यही है। देखो शंकरा के अंदर से बिल्ड प्रो में चला जाएगा मेरा मार्केट प्लेस बिजनेस। सर ये जो प्रिंट आउट है ये कौन से महीने का मैगजीन है? आप M&A थ्रेड में जाएंगे आपको मैगजीन मिल जाएगा। यही है सर, यही फेब मंथ का सर। हाँ तो फेब 24 का है सर। फेब 24 है ना, प्लीज गो टू द सर्च ऑप्शन M&A एंड फेब 24 में आपको मिल जाएगा। तो दिस इज जैन, दिस इज फेब। मैं जनरल थ्रेड में फेब 24 का एक लिंक डालता हूँ, एनीबॉडी वांट्स टू रीड? ओह थैंक यू चेतन जी, आपने पहले कर दिया। मैंने कर दिया सर। थैंक यू सर, मैं स्लो हो गया सर, मैं बुढ़ा हो गया, आप फास्ट हो सर। I hope I have made it very clear what is happening. And don't be surprised, this is no insider news, this is general reading across the industry. That's what I said. Once you read, patterns start to emerge. And in this business, you have to read. There is no shortcut. Any questions? अभिषेक सर, थोड़ा सा आपको भी वो लग रहा होगा कि यार ये कहाँ से स्टोरी निकल के आई? हाँ जी सर। सर तो just a question, ये सारा the entire thing in this particular lecture, it was basically made to understand that this is how the businesses don't, everything is not shown and you have to go a little deep. So this was the purpose of this, isn't it? And this is the purpose of what, how the promoter thinks and how we the investor thinks, or the trader thinks. Right. So once we can match our wavelength with the thinking of the promoter, then we know where this direction the business is going, and we have to be in that direction. Else we lose money, and we cry, stock market is gambler's game, बड़े लोगों का खेल. So now you know, after the demerger of the Shankara plant, when the Shankara Buildco is out, this company is supposed to fall to a market cap of maybe less than 300 crores or 200 crores, and that is a good time to buy. You will not make extraordinary returns because this is not going to be an extraordinary company, but you will go and get partnered, or you have a share swap with APL Apollo. So your returns are not going to be very great because he is not going in for this for returns. He is going in for acquire the plant because that makes business sense for him. And I think many of you are first time trying and matching the wavelength of a promoter like this. We can be wrong, I don't know. This is just the analysis. Any questions? No, I don't think so. So ये आपने पहले भी बताया हुआ है. So today was a good revision, of course. So I have shared you the APL Apollo case study. Please watch that video. It's just hardly 10-12 minutes. समझ आ जाएगा कि पहले इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने क्या किया। पुराना रिकॉर्डिंग जाके देखोगे, आपको पुराना रिकॉर्डिंग में ये शंकरा का केस स्टडी मिल जाएगा। बाकी M&A का फेब का चेतन जी ने डाल ही दिया है, धनंजय जी ने फोटो डाल ही दिया। ठीक है। So this will open up your eyes how things work. चार्ट्स तो बात पे बनते हैं। तो बस अगर मैं एक लाइन बोल जाने के बाद बनेगा, तो अगर मैं एक लाइन बोलूं तो आज आई थिंक थोड़ा विश्वास हो रहा होगा कि भाव भगवान नहीं छे भाई। भाव तो चलाया जाता है या गिराया जाता है, जैसे प्रमोटर की मर्जी। भाव भगवान नहीं छे, भाव शैतान छे, क्योंकि वो दिमाग से खेलता है।
So those of you who will watch this recording again, I bet you चार्ट देखने का मन नहीं करेगा, विश्वास उड़ जाएगा प्राइस एक्शन से. That is why I told when I started this batch, your trading abilities are going to be severely disturbed and distorted. ठीक है. One more question, sir. Have we changed the pattern of getting access to the recording? We've sent the email and all of this. No. They have not changed the pattern. बीच में मैंने क्या किया था sir? Because they are very good people over here who have got good friends. So I got an update that the links of the YouTube videos are going out also with good friends. So what I did, I made an Excel sheet and I made these videos private. So only the member who has registered with the Excel has given me the email ID will only be able to access the recording. Few of them. And recordings would be accessed in YouTube only now, not Yes, in the not in these threads now any longer. Recording they will be posted in the threads and they will be accessed in YouTube only because they are going to stay organized. Because else क्या होता है सर, थ्रेड में वो मिक्सअप हो जाता है, भूल जाते हैं. अभी जो पुरानी रिकॉर्डिंग से कोई देखेगा ही नहीं उसको. At least they are organized. At least they are organized. So please give your email address in that Excel thread. No, I've given it already. So I just wanted to know if there's something. All who have posted their email IDs will get the mail of the recording. Now this is an important session, important recording, so I'll make it private, so others cannot access. तो जो आपने email दिया है, वो email से आप login करेंगे तो आपके system पे खुलेगा, दूसरे system पे खुलेगा ही नहीं. ना email से login करने का मतलब मेरे को नहीं मालूम चला. सर Gmail ID से आप login करेंगे ना अपने. Okay, मतलब जैसे मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ. आप YouTube में जब सर अपन Chrome के पेज में आपका जो मेल एड्रेस आपने जो डाला है ना, वो मेल डालने के बाद जब आप YouTube खोलेंगे तो it will be accessible to you. Otherwise it will not be accessible to you. So that means कि मुझे YouTube में वो वाला डालना है जो मैंने आपको दिया है ना. हाँ जी. You authenticate yourself with your Gmail which is shared, then you'll get access. That's actually technically what he's. So you can watch on your phone, your laptop, your iPad or anything because you use the same ID in all the devices. बाकी जो अच्छे लोग हैं जो अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं वो बेचारे अटक जाएंगे. नहीं सर, वो फ्रेंड्स को साथ में बैठा के खाएंगे. वो तो फिर हिंदुस्तानी जुगाड़ है, उसका तो मैं क्या करूं. नहीं सर ठीक है ना, इतना एफर्ट भी तो लगाएंगे ना उसके लिए, फिर फ्रेंड को साथ. अच्छी बात है ना, दोनों मिलकर कुछ सीखेंगे. अच्छी बात है ना, सीखेंगे तब तो आगे जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. So I hope I have not spoken up too very fast. So I think सबको आइडिया लग गया मैं क्या बोलना चाह रहा था. Yeah, but very intricate anyway. Yes sir, it was a very good revision at least of goodwill. I remember goodwill to asset ratio जब हमने किया था. See, two things again. Your goodwill or your intangibles more than 50% of your balance sheet is bad. That means you are ready to get drawdown write-offs. When you get write-offs, markets will not want to appreciate your market cap, no matter whatever your ROC, your growth, your profitability, your margins. Whenever the management comes and takes a write-off, you are going to get a kick in the market cap. So ऐसे स्टॉक को तो हाथ लगाना भूल जाओ. And see, there are exceptions also in the world. Nothing is perfect in finance. There is no yes or no answer. There are exceptions. Berkshire Hathaway is an exception. The company is a serial acquirer and has done tremendously well in the last 60-70 years. Exceptions भी होते हैं. So don't take it at face value. Use your own judgment. And next, when you have a good goodwill write-off, that is the time rather short the business. But since this is not America, so we cannot carry a short position. India में allowed नहीं है. So to cusp of this session today. सर ये 50% वाला कंपैरिजन आपने जो बताया वो एक्विजिशन के ईयर में चेक करना है या राइट ऑफ होने के बाद भी चेक करना है? हाँ, राइट ऑफ होने के बाद भी चेक. राइट ऑफ होगा तो धीरे धीरे 50 से नीचे आएगा ना वो. जैसे मामी में पहले वो एक्विजिशन ईयर में ज्यादा मतलब पिक्चर मतलब दिखेगा कि कितना वो मतलब उसमें इंटेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट किया है. हाँ, एक्विजिशन में ज्यादा दिखेगा. दैट मींस द बैलेंस शीट इज ब्लोटेड. यस सर. देखो कौन सा बंदा ज्यादा, जो जिसका मोटापा पेट ज्यादा हो या जिसकी मसल्स या बॉडी ज्यादा हो, कौन सी ग्रोथ अच्छी है? सिंपल आंसर.
मोटा होना इज ऑल्सो ग्रोइंग योर स्टमक, और जिम में जाके एक्सरसाइज करना ऑल्सो मेकिंग योर बॉडी, विच ग्रोथ इज बेटर? शशि सर बताएंगे। शशि सर आपकी आवाज मेरे को तो नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है क्या? नॉट टू श्योर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही शशि सर की। वो कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। जिमी बोला हुआ था। कुछ माइक में कुछ इशू होगा। So please revise. मैं तो 15 तारीख को आपको नेक्स्ट कॉल करना था, इसमें भी मैंने 5 कॉल कर चुका हूँ। Please revise the old session so you get a hang of it and you move ahead. There's much to learn, much to cover, much new concepts, new case studies, more and more of case studies, more of valuations. शशि सर, आई थिंक आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करो तो शायद ठीक हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी शायद आएंगे। Yes sir, please try. Hello sir. Hello sir, how are you? Good evening sir. Good evening all of you. I joined late. जी सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं है क्या क्या बातें हो गई, बट मेरा एक क्वेश्चन ये था। हाँ सर। कि अभी जो हमने रिकॉर्डिंग सेशन में हमने कॉट और आरएसआई का यूज किया था, उसमें 3 वीडियोस हैं। तो एक तरफ हम चार्ट से और टेक्नोफंडा से और प्राइस एक्शन से दूर जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कॉट स्टडीज और आरएसआई को यूज करके एंट्री एग्जिट लेने का सोच रहे हैं। सर मेरे को ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, वो आपसे आगे अच्छी बात है। मेरे को एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था सर। 65-70 लोग हैं, किसी का दिमाग चार्ट में ही चल रहा है। सर मेरा पर्सनली तो नहीं चल रहा है। प्लीज सर। तो बेसिकली सर ये अपने जो मेजर ड्रॉ डाउन्स हैं, हम ये एज अ टाइमिंग टूल नहीं है, ये जो हमारे मेजर ड्रॉ डाउन्स हैं उसको कवर करने के लिए, उसमें हम ना फंसे मेजर ड्रॉ डाउन्स में, उसके लिए हमें ये टूल दिया गया है। सेकेंड थिंग सर, उसमें वॉल्यूम्स तो हम चेक नहीं कर रहे हैं, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें वॉल्यूम है नहीं। और बेसिकली बस ये एक प्रोटेक्शन टूल है, समझ लीजिए, इंश्योरेंस समझ लीजिए, नथिंग एल्स। Sir, just to add more over here, see when the COD sessions were done, the mindset of the COD session or the pro session was always on the trading aspect. अगर आपको trade करना है तो, but an investor can also use these tools to find undervalued stuff when the setups are not there, when the pros are not interested, when the delivery volumes are going up, जो सुनील सर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So we can use it other way around also to find undervalued bets, to find good businesses, provided we understand the business. That is my aspect to it. Okay, if somebody wants to trade, somebody is still very happy with the charts, please be with the charts. No compulsions. Thank you, sir. Chalo sir, thank you. Good night. I'll just share the recording. Give me 5 minutes. Thank you, sir. Thank you.